ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تمہاری خاطر نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ ضائع نہیں کرتے۔ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اس لیے وہ تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ جس دن انسان کو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، اس دن اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعہ انسان کو عدل اور دانائی سے بھرپور لگے گا۔ جس دن انسان نے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اس دن بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی اسے رب کی رضا کے آگے ہیچ لے گی۔ لیکن کاش ہم سمجھیں، کاش۔ امائزہ رخصت ہو کر شہریار کے گھر آ گئی تھی۔ گھر والوں نے اسے سارے تعلق توڑ دیے تھے اور وہ ان کو حق بجانب سمجھتی تھی۔ یہ سزا اس کا مقدر تھی، کیونکہ یہ راستہ اس نے خود چنا تھا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لڑکیاں کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں، یا ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے من چاہے ہمسفر سے شادی کر لیتی ہیں، یا من چاہا ہمسفر نہ ملنے میں اسی نامحرم کی محبت میں مبتلا رہتی ہیں، تو بعد میں انہی کے ہمسفر اللہ سے دعا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اے اللہ، میری بیٹی اپنی ماں پر نہ جائے، کیونکہ بقول ان کے جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ آج لڑکیاں اپنے 22 دن کی محبت کے پیچھے ماں باپ کی 22 سال کی محبت کو بھلا دیتی ہیں۔ شہریار امائزہ کو ایک کمرے میں لے آیا۔ اب سے یہ کمرہ آپ کا ہے، آپ یہیں رہیں گی جبکہ میں ساتھ والے کمرے میں رہوں گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا سکتی ہیں۔ شہریار نے کہا تو امائزہ نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اب ہمیں کچھ باتیں کلیئر کر لینی چاہیے، شہریار نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں؟ امائزہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھیں۔ شہریار نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو وہ عین اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا۔ پہلی بات، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ اس دن پارک میں میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں صرف آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ امائزہ کو لگا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے، مطلب اصلی امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ کس سے بچانا چاہتے تھے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہمدان سے۔ امائزہ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ تو ہمایوں۔ امائزہ کا دماغ معوف ہونے لگا تھا۔ اوہ، تو اس نے آپ کو اپنا اصلی نام بھی نہیں بتایا؟ وہ جیسے ہنسا تھا۔ ہمدان خانزادہ عرف ایچ کے عرف ہمایوں خلیل ایک را ایجنٹ ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ کیوں تھا یہ تو اس دن ریسٹورنٹ میں اس نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اگر میں بتاؤں وہاں لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے تو آپ کی روح کانپ جائے۔ امائزہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی۔ دوسری بات، کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے پہلو میں بیٹھ کر کسی غیر مرد کا سوگ بنائے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس پیش سے خود کو نکالیں۔ میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں تو بدلے میں آپ بھی میرے ساتھ وفادار رہیں۔ اس نے وقفہ کیا۔ اب میں چلتا ہوں، آپ آرام کیجیے۔ مجھے کیوں بچایا؟ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے آواز سنی۔ آپ شایان کی بہن ہیں، اس لیے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا۔ پیچھے امائزہ خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور سر وجود تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ اللہ، میرے پیارے اللہ۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی، اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اللہ۔ وہ بار بار بس ایک ہی لفظ کا ورد کر رہی تھی، اللہ۔ اس کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں تھا، شرمندگی ہی شرمندگی تھی، اور کچھ تو نہیں، لیکن دل کو سکون ضرور مل گیا تھا۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بہت صبر و ہمت سے اس رشتے کو لے کر چلنا تھا۔ وہ لڑکیاں جن کے شوہروں کو ان کی شادی سے پہلے کے تعلقات کا پتہ ہو، زندگی ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت کم مرد اتنے ظرف والے ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس کے سیاہ ماضی کے ساتھ قبول کر لیں اور پھر اسے عزت بھی دیں۔ اور پھر یہ معمول بن گیا۔ امائزہ شہریار کی ضروریات کا بغیر کہے دھیان رکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت ایک نام سی اداسی رہنے لگی، کیونکہ اسے گلٹ تھا کہ وہ کیوں ہمدان عرف ہمایوں کے جال میں پھنس کر اپنے گھر والوں کو دھوکے میں رکھنے لگی تھی۔ شہریار ہمیشہ سے اپنا کام خود کرنے کا عادی تھا، اس لیے امائزہ کو اپنا خیال رکھتے دیکھنا اسے ایک نظر نہیں بھایا۔ ایک دن ضد آ کر اس نے امائزہ کو کہہ ہی دیا، میں ہمایوں نہیں ہوں جو آپ اس طرح میرا خیال رکھتی ہیں، نہ ہی مجھے ان چونچلوں کی عادت ہے، آپ میرے لیے سب نہ کیا کریں۔ امائزہ کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا، اور اب وہ اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔
ख्याल तो शहरयार भी उसका बहुत रखता था। रोज रात को 1 घंटा माइजा के लिए मुख्तस होता, जिसमें कुछ वो अपनी सुनता, कुछ उसकी सुनाता। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता। कहते हैं जब पत्थर पर भी लगातार पानी पड़ता रहे तो उसमें भी शगाफ पैदा हो जाता है। फिर शहरयार क़याम तो इंसान था। उनकी शादी को 2 माह होने को आए थे। अमाइज़ा का मामूल था कि वो रोज़ सुबह शहरयार को नमाज के लिए उठाने आती और फिर उसकी इमामत में नमाज पढ़ती। लेकिन आज 5 बजने वाले थे, वो अभी तक कमरे में नहीं आई। शहरयार को तशवीश होने लगी। फिर मुझे क्या कहकर उसने सर झटक दिया। वह नमाज पढ़कर जॉगिंग के लिए चला गया, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ अमाइज़ा में ही अटका हुआ था। वो वापस आया तो ना ही उसका जूस तैयार था, ना कपड़े, और ना ही बाकी ज़रूरत का सामान। अब उसे वाकई परेशानी होने लगी। वो अमाइज़ा के कमरे के बाहर पहुंचा और हल्के से दस्तक दी, लेकिन जवाब नदारद। दूसरी और फिर तीसरी बार दस्तक देने पर भी कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अमाइज़ा सर तक कंबल ताने सो रही थी। अमाइज़ा, शहरयार ने आवाज़ दी, लेकिन फिर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसने ज़रा सा कंबल चेहरे से हटाकर देखा। अमाइज़ा का चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। अमाइज़ा, शहरयार ने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो वो बुखार की हिद्दत से तप रहा था। शहरयार को बेख्तियार अपनी लापरवाही पर तैश आया। उसने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया और खुद बावर्ची खाने में जाकर ठंडे पानी की पट्टियाँ ले आया। वो अमाइज़ा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगा। वो पहले ही हेडक्वार्टर्स को इत्तला दे चुका था कि वो आज नहीं आ सकेगा। इतने में डॉक्टर मरियम भी आ गईं। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? शहरयार ने बेताबी से पूछा। वो काफ़ी अरसे से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है, जिसका नतीजा आज बुखार की सूरत में सामने आया है। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये किसी चीज़ की टेंशन ना लें। डॉक्टर मरियम अपने पेशावराना अंदाज में कहती चली गई। उन्हें होश कब तक आएगा? ये उनकी विल पावर पर मुनहसिर है। बाकी ड्रिप मैंने लगा दी है और दवाइयाँ भी लिख दी हैं। जब उन्हें होश आ जाए तो कुछ हल्का फुल्का खिलाकर दवाई देनी है। उसके बाद डॉक्टर मरियम वहाँ से चली गई। हाल वो लोग अमाइज़ा को इंतहाई निगहदाश्त में ले आए थे। लूसीफर की पूरी शर्ट अमाइज़ा के खून से भरी हुई थी, लेकिन इसको अपना कोई होश नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं, दिल की धड़कन मध्यम हो गई थी। इंतज़ार तवील से तवील तर होता जा रहा था। बिल आखिर 2 घंटे के इंतज़ार के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। शहरयार लिपक कर डॉक्टर के पास पहुंचा। मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? वो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। देखें मिस्टर शहरयार, सीढ़ियों से गिरते हुए उनके सर पर कोई नोकीली चीज़ लगी है, जिसकी वजह से वो कोमा में जा चुकी हैं। आप लोग बस दुआ करें कि उन्हें जल्द अज जल्द होश आ जाए। डॉक्टर शहरयार के कंधे पर थपकी देकर चला गया और शहरयार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। बाकी हर शय की कदर थी उनको। रायगां ज़ात बस हमारी ठहरी। माजी सुबह से रात हो गई थी, लेकिन अमाइज़ा को अभी तक होश नहीं आया था। उसका बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा दिल करता है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। अचानक वो नींद में बोली। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। एक आंसू बहकर उसकी कनपट्टी में जज्ब हुआ। क्यों? शहरयार जो उसकी जानिब मुतवज्जे था फौरन उसने पूछा। क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। अमाइज़ा के चेहरे पर नींद में भी कुर्ब था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शहरयार बहुत गौर से उसके चेहरे को उतार चढ़ाव देख रहा था। मैंने सबका दिल दुखाया है, मामा का, बाबा का, भाइयों का, सबका, और शायद शहरयार का भी। उन्हें कोई बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए थी। नींद में भी अमाइज़ा की आवाज़ रुंध गई थी। शहरयार कौन है? न जाने किस जज्बे के तहत उसने पूछा। शहरयार वो मेरे शौहर हैं। आपको पता है वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे उनके सामने अपना आप बहुत छोटा लगता है। मुझे लगता था मुझे हुमायूं से मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मुझे हमेशा शर्मिंदा कर देती थी, लेकिन अब पता चला वो तो एक वक्ती कशिश थी। मोहब्बत तो मुझे शहरयार से है। शहरयार उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। वो जानता था अमाइज़ा झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि नींद में इंसान हमेशा सच बोलता है। कब हुई मोहब्बत? शहरयार ने खुद को कहते सुना। उस दिन पार्क में, जब मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपनी इज्जत बनाने की बात की। शहरयार के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर अमाइज़ा का ख्याल रखा था। वो उसकी इज्जत थी और शहरयार क़याम को यह गवारा नहीं था कि उसके निगाह में होते हुए वो गैरों की तरह उसके घर में रहे। क्या वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? इसने खुद से पूछा, और जवाब था, नहीं शहरयार क़याम, वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मोहब्बत भी है, वरना उसकी तकलीफ तुम्हें कभी बेचैन ना करती।
अमायजा के बीमार होने के बाद शहरयार ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगा था। उसे कब अमायजा से मोहब्बत हुई से खुद भी खबर ना थी। उसने तो निकाह भी सिर्फ ये सोचकर किया था कि वह शयान की बहन है और शयान की इज्जत उसकी इज्जत। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? बिल्कुल नहीं। और जवाब में वो खुद से नजरें चुराने लगा। 2 दिन बाद अमायजा को होश आ गया। उसके बाद वो दोनों एक ही कमरे में रहने लगे थे। कुछ भी था, लेकिन शहरयार अमायजा को बीमार नहीं देख सकता था। ये उसके बस में नहीं था। 6 महीने होने को आए थे। शहरयार अभी तक इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर सका था कि अमायजा को उससे मोहब्बत है, और जब दिलो दिमाग इस दुश्मन जाके हक में गवाही देते तो वो झुंझला जाता। बेबसी सी बेबसी थी, बेकली सी बेकली थी। वो भी एक आम सी रात थी। वो अमायजा के सोने के बाद कमरे में आया था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो कमरे से मुल्हिका बालकनी में आ गया। सोचों का मरकज अमायजा थी। वो चौंका तब जब दबी दबी सिसकियों की आवाज़ उसके कानों से टकराई। शहरयार ने बेख्तियार वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। शहरयार का दिल बहुत जोर से धड़का। इस वक्त कौन रो रहा था? हैरत सी हैरत थी। वो बालकनी से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा अमायदा जाए नमाज पर बैठी अपने रब से राजो न्याज करने में मसरूफ थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। और बस वो एक लम्हा था जब शहरयार क़याम पूरी तरह अपना दिल हार चुका था। वो जो खुद को ये कहकर तसल्ली देता था कि वो शयान की बहन है, इसलिए वो उसके साथ अच्छा सलूक करता है, तो आज उसकी सारी दलीलें धरी की धरी रह गई थीं। आज शहरयार क़याम ने मान लिया था कि अमायदा शहरयार उसकी मोहब्बत है। वो आहिस्ता से चलता हुआ सोफे पर जाकर बैठ गया। अमायदा जब नमाज पढ़कर फारिग हुई तो इसे वहां बैठकर ठटक गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अमायदा ने नजरें चुराई। शहरयार ने कुछ कहे बगैर उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। आप ठीक हैं? शहरयार ने उसकी आंखों में झांकना चाहा। जी, यक लफ्जी जवाब आया। लगता तो नहीं है। शहरयार का इतना कहना था कि अमायदा फिर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दें शहरयार, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मुझे खुद से घिन आती है। अगर उस दिन आप लोग वक्त पर आते तो हुमायूं पता नहीं मेरे साथ क्या कर जाता। अमायजा ने अटकते हुए बात मुकम्मल की। माइस, जो हुआ उसे भूल जाएं। मुझे आप अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के साथ कबूल हैं। क्या आपकी तसल्ली के लिए ये बात काफ़ी नहीं है? अमायजा तो बस माइस पर ही अटक गई थी। इससे आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कितना खूबसूरत लगता था उसके लबों से अपना नाम माइस। अमायजा ने दोहराया। शहरयार के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसने अंगूठे की मदद से अमायजा के आंसू साफ किए और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। बिल आकर दिलों से कदूरतें मिट गई थीं। वो जो एक झिझक सी थी उनके दरमियान अब वो भी ख़त्म हो गई थी। 6 महीने लगे थे अमायजा जुल्फ़िकार को शहरयार ख़याम का दिल जीतने में। हुमायूं खलील उर्फ हमदान खानजादा रॉ का एजेंट था, जिसको पकड़ने की जिम्मेदारी ISI ने मेजर डेमोनियो और शहरयार ख़याम को दी थी। जिस दिन शहरयार शयान और अरमगान रेस्टोरेंट गए थे, शहरयार पहले ही अमायजा और हमदान को देख चुका था। उसने चुपके से अपनी टीम को वहाँ आने का मैसेज कर दिया, और जब पुलिस हमदान को वहाँ से लेकर गई तो वो शहरयार ही के आदमी थे। और इस वक्त तो जेल के अंदर हमदान के सामने खड़ा था, पूरी तरह आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस। वो बेहद वजीह लग रहा था। जेल की सलाखों के पीछे कैसा लग रहा है एचके? वैसे भी तुम्हारे दिन अब पूरे हो चुके हैं, शहरयार ने सर्द लहजे में कहा। हमदान खामोश रहा। कोई आखिरी ख्वाहिश? शहरयार ने संजीदगी से पूछा। 2 ख्वाहिशें हैं, अगर तुम पूरी कर सको तो। हमदान ने उम्मीद भरी नज़रों से शहरयार की तरफ देखा। बोलो। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी बहन का ख्याल रखा जाए। वो बहुत मासूम है, मेरे गुनाहों की सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। उसकी आवाज़ में एक खौफ था। सारा तनतना कहीं दूर जा सोया था। शहरयार ने बेतासुर नज़रों से उसकी तरफ देखा। इज्जतों के लुटेरे को अपनी इज्जत की हिफाजत हो रही थी। कितनी मुसीका खेज बात थी। और दूसरी ख्वाहिश? चेहरा अब भी स्पार्ट था। मैं एक दफ़ा अमायजा से मिलना चाहता हूँ। उसमें एतमाद था और बला का था। वो एक शौहर से कह रहा था कि वो उसकी बीवी से मिलना चाहता है, लेकिन वो शायद मशरकी मर्दों की गैरत से वाकिफ़ नहीं था। शहरयार आगे बढ़ा और उसके मुंह पर पे दर पे मुक्के मारे। मैं तुझे इतना बगैरत लगता हूँ कि अपनी बीवी को तुझसे मिलवाने लाऊंगा? मैं तुम्हारे साय को भी उस तक ना पहुँचने दूँ। मिलवाना तो बहुत दूर की बात है। शहरयार ने उसे धनक कर रख दिया। अपनी बहन की फिक्र न करना, वो आज से मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी बीवी का नाम अगर गलती से भी तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारी जुबान काटने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। और सिर्फ जुबान नहीं काटूंगा, इसके बाद तुम्हारी आंखें निकालूंगा, फिर तुम्हारे हाथ पाँव काट कर सड़क पर भीख मंगवाने छोड़ दूंगा। अपनी बात कहकर वो चला गया।
एक गैरत मर्द को ये कहाँ गवारा होता है कि उससे जुड़ी औरत का जिक्र कोई गैर मर्द करे। जेल की सलाखों के पीछे हमदान खानजादा अपनी ज़मीर की अदालत में मौजूद था। वो ISI के कब्जे में था और यहाँ से निकल पाना तकरीबन नामुमकिन था। अब हुमायूं खलील का बाब उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बंद हो गया था। रात का दूसरा पहर था। हर सीरू इस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। उस अंधेरी रात में शायान जुल्फिकार पे मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। जब से मायजा वाला मामला हुआ था, रात देर से घर आना उसका मामूल बन गया था। वो खुद से भागता फिर रहा था। उसे लगता था कि वो अपनी बहन की तरबियत ठीक से नहीं कर पाया था। उसने तो मायजा का बाप बनने की कोशिश की थी, वो तो उसका भाई भी नहीं बन पाया। वरना इतने अपनों के होते हुए वो घर के बाहर मोहब्बतें क्यों तलाश करती। और यही ख्याल उसकी आंखें नम कर देता था। उसने झटके से गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग के साथ सर टिका दिया। अभी ऐसे बैठे से कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से आवाज़ें आने लगीं। उसे हैरत हुई, इतनी रात को आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो फौरन गाड़ी से निकला। ए लड़की, रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे भाग रहे थे, शायद उसे मारना चाहते थे। उस लड़की की नज़र जैसे ही शायान पर पड़ी, गोया उसे जिंदगी की नवीद मिल गई। मुझे बचा ले प्लीज़। उसने शायान के सामने हाथ जोड़ दिए। शायान ने एक नज़र उस लड़की के बिखरे हुलिये को देखा और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो खुद इन 3 गुंडों के सामने जाकर खड़ा हो गया। लड़की को जाने दो, उसने गुंडों की आंखों में आंखें डालकर कहा। एक लम्हे के लिए तो वो गुंडे डर गए, लेकिन जल्दी संभल गए। देख शहरी बाबू, ज़्यादा होशियार मत बन और उस लड़की को हमारे हवाले कर दे, उन गुंडों के सरबराह ने आगे बढ़कर कहा। ठीक है, अगर ले जा सकते हो तो ले जाओ। शायान ने कंधे अचकाए। सरबराह ने अपने एक साथी को इशारा किया। जैसे ही वो गुंडा आगे बढ़ने लगा, उसने एक टांग उसके पेट में मारी और कुछ देर बाद वो उन गुंडों की अच्छी खासी दुर्गंध बना चुका था। इतनी मार खाने के बाद वो गुंडे वहां से 9-2-11 हो गए। शायान अपनी शर्ट ठीक करता खुद भी गाड़ी में सवार हो गया। पत्थर था, लेकिन बर्फ के गालों की तरह था। एक शख्स अंधेरे में उजालों की तरह था। उलझा हुआ ऐसा कि कभी सुलझ नहीं पाया, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था। शायान गाड़ी में आकर बैठा तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो बहुत डरी और सहमी हुई लग रही थी। देखें, घबराए मत, अब सब कुछ ठीक है, शायान ने उसे तसल्ली दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज अल्लाह आपको मेरे लिए वसीला ना बनाता तो न जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते। उस लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा कि शायान बा मुश्किल सुन पाया। अगर अल्लाह मुझे वसीला ना बना दे तो किसी और को बना देता, क्योंकि वो कादिर है, कदीर है और मुक्तदिर है। अपनी बात कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। आपका नाम पूछ सकता हूँ? कुछ वक्फे के बाद उसने कहा। ईशा खानजादा। मुख्तसर जवाब देकर वो चुप हो गई। और वो लोग कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? शायान ने वो सवाल किया जो कब से पूछना चाहता था। वो भाई के दुश्मन थे, भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं और वो लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। ईशा अपनी बात कहकर रोने लगी। शायान को वो कोई छोटी बच्ची ही लगी। तो यहाँ आपका कोई रिश्तेदार है जिसके घर में आपको छोड़ सकूं? न जाने क्यों, मगर शायान को उससे बात करना अच्छा लग रहा था। मेरा भाई के अलावा और कोई नहीं है। आप मुझे किसी दारुल अमान में छोड़ दें, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शायान ने कुछ समझते हुए सर हिलाया और गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। यह मोहब्बत भी अजीब चीज़ है, कभी लम्हों में हो जाती है और कभी सदियां बीत जाती हैं। एक इल्हाम की सूरत ये दिलों पर उतरती है और फिर इंसान को अपना भी नहीं रहने देती। शायान जिस वक्त ईशा को घर ले आया, इस वक्त सभी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। ईशा ने बहुत वावेला मचाया, लेकिन शायान ने अपनी मर्जी की। वो इसे गेस्ट रूम में ले आया। आप यहाँ आराम करें, इंशाल्लाह सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर वो चला गया। ईशा अजीब कश्मकश का शिकार थी। उसने गहरी सांस ली और बाथरूम में ताज़ा दम होने चली गई। वो वापस आई तो साइड टेबल पर खाने की ट्रे देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। वो खाना खाकर सोने के लिए लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह क्या होने वाला था ये सोचते ही उसको बेचैनी होने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी जब नींद न आई, उसने उठकर वजू किया, 2 रकत नफले हाजत पढ़े और अल्लाह से अपने हक में बेहतरी की दुआ मांगी। अब वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। बिस्तर पर लेटते ही वो जल्द नींद की सुनहरी वादियों में उतर गई। अगले दिन वो सोकर उठी तो कुछ वक्त उसी कमरे में बंद रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर जाया जाए या ना जाए। अभी वो इसी कश्मकश में थी, एक बहुत वक़ार औरत दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम, उसने झिझकते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, मैं माजरत चाहती हूँ, रात को आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। उस नालायक ने मुझे अभी आपके बारे में बताया। वो एक शफीक से मुस्कुराहट के साथ बोली, जबकि शायान को नालायक कहने पर ईशा की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कोई बात नहीं आंटी, उसने नज़रें झुका कर कहा।
बेटा, आप ये कपड़े पहनकर ताज़ा दम हो जाओ, सब नाश्ते पर आपके मुंतज़िर हैं। उन्होंने माइजा का एक सूट उसकी तरफ बढ़ाया जो कि ईशा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आई तो सब नाश्ता करने में मसरूफ थे। अस्सलामुअलैकुम। उसने सलाम करके सबको मुतवज्जे किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बच्चे, बैठकर नाश्ता करो। बाबा जान ने बड़ी गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया, जबकि काशान और मरगान ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया और दबी दबी हंसी हंसने लगे। उन सबके लिए हैरत की बात थी कि शायान जुल्फ़िकार, जो लड़कियों से मीलों दूर भागता था, उसने न सिर्फ रात को एक लड़की की मदद की, बल्कि उसे घर भी ले आया था। बाबा जान उससे हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। बीच में अम्मा जान, काशान और मरगान भी अपना हिस्सा डाल लेते, लेकिन शायान नाश्ता करने में इस कदर मसरूफ था जैसे नाश्ता ना हो गया मसला कश्मीर हो गया। अम्मा जान ने शायान को बहुत गौर से देखा और फिर रात को तफसील से बात करने का सोचकर मुतमिन हो गई। रात को जब शायान घर आया तो ईशा के अलावा खाने के मेज़ पर सब मौजूद थे। उसकी नज़रें बार बार ईशा को तलाश करती, लेकिन हर बार नाकाम लौटती। इंसान जब खुद को बहुत तोप चीज़ समझने लगता है तो अल्लाह उसकी ताकत को तोड़कर उसको ज़मीन पर ला पटकता है। शायान के साथ भी यही हुआ था। अमाइज़ा के मामले में वो सोचता था कि उसकी बहन एक कमज़ोर किरदार की मालिक है और वो खुद कभी किसी नामहरम की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो सकता। ईशा उसके लिए नामहरम थी और जाने अनजाने में वो भी नामहरम की मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था। उसे रह रहकर अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। बरखोरदार, स्टडी रूम में आओ, ज़रूरी बात करनी है। बाबा जान ने अपना खाना मुकम्मल करके शायान को मुखातिब किया। जी बाबा जान। उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो खाना मुकम्मल करके स्टडी रूम की तरफ चल पड़ा। भाई तो गए काम से, काशान ने तबसरा किया। अच्छा है ना, हम पर रोब झाड़ते थे, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अरमगान ने मज़ाहिया अंदाज में कहा और दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अम्मा जान ने दिल ही दिल में दोनों की नज़र उतारी थी। अमाइज़ा वाले वाक़ये के बाद उन्होंने अब उन दोनों को हंसता देखा था। वो दरवाजे पर दस्तक देकर स्टडी रूम में दाखिल हुआ। बाबा जान किताब पढ़ने में मगन नजर आए। वो कंफ्यूज उनके सामने जाकर बैठ गया। सबकी मायने खेज नजरें और अब बाबा जान का रवैया इसको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। आपने खैरियत से बुलाया बाबा जान? उसने गला खनकार कर बात का आगाज किया। बाबा जान ने एक नज़र ऐनक के ऊपर से उसकी तरफ देखा और किताब बंद कर दी। अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थे। ये ईशा बेटी का क्या मामला है बरखोरदार? उन्होंने तोलती नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अब की बार वो सच में गड़बड़ा गया। दिल के हाथों मजबूर होकर उसे घर तो ले आए हो, अब निकाह के बारे में क्या इरादा है? उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने साफ अंदाज में उसके अंदर का चोर उसके सामने ला खड़े करेंगे। वो नज़रें झुका गया। जो आपको मुनासिब लगे बाबा जान। आह, इस वक्त शायान जुल्फ़िकार से भी ज़्यादा फर्माबरदार इस कुर्रा अर्ज़ पर कोई होगा भला? देखो शायान, ईशा बेटी का जो भी फैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह के लिए राज़ी होती है तो इस जुमे हम तुम दोनों का निकाह करवा देंगे, और अगर वो इनकार कर दे तो तुम उसे उस लड़की के पास छोड़ाना। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल करके गहरा सांस लिया। गोया अमाइज़ा का जिक्र करना भी उनके लिए तकलीफ दे था। लेकिन क्यों बाबा? दिल ने एहतजाज बुलंद किया तो दिल का राज लबों का कफल तोड़कर जुबान से अदा हुआ। बरखोरदार, इस घर में 3-3 जवान जहाँ लड़के हैं, वो भी कवारे और नामहरम, ऐसे में उसका यहाँ रहना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। बाबा जान ने लहजे में सख्ती लाते हुए कहा। जैसा आप चाहें। उसने गंदा सा मुंह बनाया और इजाज़त देकर चल दिया, जबकि उसकी बेताबी पर बाबा जान ज़ेरे लब मुस्कुराते रह गए। दिलो जान से करेंगे हिफाजत तेरी, बस एक बार कह दे इमानत हो मेरी। अम्मा जान ईशा से उसकी राय पूछ चुकी थी। घर में खुशी का समा था। अमाइज़ा वाले वाक़ये के बाद अरसा हुआ था कि इन लोगों को कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी। ऐसे में शायान अपने जिगरी दोस्त को कैसे भूल सकता था। वो अगले दिन शहरयार से मिलने उसके ऑफिस गया। शहरयार काम में बुरी तरह मसरूफ़ था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, मसरूफ़ अंदाज में कहा गया। सर, अभी भी फाइल से नहीं उठाया था उसने। अस्सलामुअलैकुम। शहरयार ने चौंक कर ऊपर देखा। सामने शायान खड़ा था। वो फ़ौरन अपनी कुर्सी से उठा और उसे बगलगीर हुआ। वालेकुम अस्सलाम। आज हम गरीबों को कैसे याद कर लिया इज़्ज़त माप शायान जुल्फ़िकार साहब ने? सलाम का जवाब देते हुए वो तंज करना नहीं भूला था। अगर गरीब तुम जैसे होने लगे तो इस मुल्क के हालात ना बदल जाएं, शायान ने हंसते हुए कहा। खुशी उसके रूम रूम से फूट रही थी। शहरयार ने दिल में उसके खुश रहने की दुआ की और अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
वैसे इतने दिनों बाद खैर से आना हुआ? शहरयार ने उसके आने की वजह जाननी चाहिए। मैं निकाह कर रहा हूँ, उसने आम से अंदाज में कहा, जबकि शहरयार को झटका लगा। मिस्टर गर्ल्स एलर्जिक और निकाह, ये तो नामुमकिनात में से था। कब है निकाह? शहरयार ने जांचती नजरों से उसे देखा। शायान ने नजरें फेर लीं, जानता था एक नया महाज खुलने वाला है। इस जुम्मे को। शायान ने बेख्तियार थूक निकला। अब भी नहीं बताना था, जब निकाह हो जाता तब बताते। शहरयार तो ठीक ठाक बुरा मान गया था। यार अब बता तो रहा हूँ, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ और बात पक्की होते ही सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। एक वही तो था जिसकी नाराजगी शायान से बर्दाश्त नहीं होती थी। वैसे भाभी का नाम क्या है? अब क्यों मुतजस्सिस हुआ? ईशा खानजादा। नाम सुनते ही शहरयार संजीदा हुआ। बाप का नाम? अब क्या शायान सीधा होकर बैठा। खलील खानजादा। शहरयार ने लंबा सांस खारिज किया। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। क्या तुम जानते हो, ये उसी लड़के की बहन है जो अमायजा के साथ रिलेशनशिप में था। और जिस सवाल से शायान जुल्फिकार बचना चाहता था वो सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ। शायान उसके अगले सवाल के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। तुम फिर भी उससे निकाह करना चाहते हो? शहरयार को छुपा हुआ। हमदार और अमायजा का जो भी मामला था, इसमें ईशा का कोई कसूर नहीं है। कब तक इतने आदम की लड़ाई में बिनते हवा पिसेगी? औरतों से बदला लेना गैरतमंद मर्दों का शेवा नहीं है, वो भी तब जब वो औरत सिरे से ही बेकसूर हो। और अब की बार शहरयार लाजवाब हो गया। अल्लाह करे फैसला तुम्हारे हक में बेहतर हो। मैं शायद आ ना सकूं, मुझे किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। शहरयार ने काफ़ी देर बाद नजरें चुराते हुए कहा। शायान जानता था कि शहरयार के लिए कोई भी काम अपने जिगरी दोस्त से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। वो बस अमायजा को अजियत से बचाना चाहता था। जब उसे पता चलेगा कि उसके जान से अजीज़ भाई ने उसकी गैर मौजूदगी में निकाह किया है तो उसे अजियत होगी। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। शायान कमरे से बाहर निकल गया और शहरयार ने कुर्सी की पच से सर टिका लिया। फिर वक्त ने साबित किया कि ईशा खानजादा शायान जुल्फिकार के लिए बेहतरीन बीवी साबित हुई थी। हाल एक हफ्ता होने को आया था, मायजा अभी तक होश में नहीं आई थी। शहरयार एक केस में बुरी तरह मसरूफ होने के बावजूद भी 2 घंटे उसके पास लाजमी गुजारता था। बस फारिग वक्त मिलने की देर होती थी, वो फौरन अस्पताल पहुंच जाता था। अमायजा के घर वाले इस वक्त उसके कमरे में मौजूद थे, लेकिन लूसीफर के आते ही वो उसे तन्हाई देने की घर से वहां से निकल के वो अमायजा के बिस्तर के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया और इसका सुइयों से जकड़ा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। एक आंसू आंख से टपक कर बेमोल हुआ। उठ जाओ ना माइज, यार आपकी ये खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने तो कभी मुझे किसी बात को लेकर तंग नहीं किया, हमेशा मेरी खुशी मेरी ख्वाहिश को फौकियत दी, तो अब क्यों मुझसे मुंह मोड़ कर बैठी हो? प्लीज़ उठ जाओ ना माइज, आपका ये बागड़ बिला आपके बगैर पल पल मर रहा है। आप इतनी बेरहम तो कभी नहीं थी जितनी अब बन गई हो। और ये कहकर वो फूट फूट कर रो दिया। कहाँ आसान होता है उस शख्स को तकलीफ में देखना जो आपकी रूह में बसा हो। दरवाजे पर खड़े शायान जुल्फिकार की आंखें भी नम हो गई थीं। कल तक जो उनसे माफ़ी की तलबगार थी, आज वो सब उससे बात करने को तरस रहे थे और वो बेहिस बनकर बैठी थी। शहरयार की नज़र दरवाजे पर खड़े शायान जुल्फिकार पर पड़ी तो वो बेख्तियार वो माजी की भूलभुलैयों में गुम हो गया। माजी। छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे मत मारो। वो 8 साल का बच्चा रो रो कर फरियाद कर रहा था, लेकिन वहाँ मौजूद किसी को भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। वो जालिम दरिंदे उसे पाँव की ठोकर पर रखे जोर जोर से कहके लगा रहे थे। चुप कर साले, तेरे बाप ने जितना हमारा नुकसान किया है उसका बदला भी तो लेना है तुझसे। अपनी बात कहकर उसने उस बच्चे को ठोकर मारी और बेहंगम कहका लगाकर वहां से चला गया। उस शख्स के पीछे उसके मातहत भी चले गए। वो बच्चा शहरयार ख़याम था, ब्रिगेडियर ख़याम खलील का इकलौता बेटा, उनकी नस्ल का अमीन। ब्रिगेडियर ख़याम खलील ने रज़ाकाराना तौर पर दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ किया था, जिसमें उन्हें खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ था। बहुत से दहशतगर्द हलाक हुए थे, लेकिन हक़ का रास्ता आसान कहाँ होता है। ब्रिगेडियर ख़याम अपनी बीवी के साथ फ़ौज की एक तकरीब में शिरकत करने गए थे, जहाँ दहशतगर्दों ने बम धमाका कर दिया और वो दोनों मियाँ बीवी मौके पर ही दम तोड़ गए। शहरयार उनकी इकलौती औलाद था। कुछ रिश्तेदारों ने दौलत की लालच में ख़याम साहब की जायदाद पर कब्जा कर लिया और शहरयार को यतीम खाने भेज दिया। लेकिन शोमई किस्मत, जहाँ शहरयार गया था वो सिर्फ देखने में ही यतीम खाना था। असल में उस यतीम खाने की आड़ में 5 से 10 साल के बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी। 11 से 18 साल के बच्चों को चोरी, डकैती, भत्ताखोरी और दूसरे जराइम की ट्रेनिंग दी जाती थी और 25 साल की उम्र तक जब वो मुकम्मल ट्रेंड हो जाते तो उन्हें खुद को हमले में इस्तेमाल किया जाता।
ہاں، یہ ضرور تھا کہ دنیا دکھاوے کے لیے وہ بچوں کو اسکول بھیج دیا کرتے، لیکن وہاں بھی ان پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ اسکول کا پرنسپل دہشت گردوں کا اپنا آدمی تھا، لیکن کون جانے ان کا اسے اسکول بھیجنا شہریار قیام کے لیے رحمت اور ان کے لیے زحمت بننے والا تھا، لیکن کون جانے۔ مقدر کی زنجیروں میں پھنسے ہم بے بس لوگ، عمر گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ آج اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، 2 دن سے بھوکا تھا، لیکن یہاں اس پر ترس کھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اسے عموماً دن میں ایک بار کھانا دیا جاتا، لیکن جب کبھی اسے سزا ملتی تو اس کا کھانا بند کر دیا جاتا۔ وہ ابھی بوجھ ڈھو کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ وہ کمر سیدھی کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹا تو درد کی شدید لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ بستر کیا تھا؟ فقط ٹاٹ کی چٹائی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہوئے، لیکن یہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے میرے ماما بابا کو اپنے پاس بلا لیا تو مجھے بھی بلا لیتے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ میری ٹیچر کہتی ہیں کہ اللہ الودود ہے، اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پلیز اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال لو، میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ اپنے رب سے اپنی سمجھ کے مطابق فریاد کرتے ہوئے زاروں کو تار رو رہا تھا، لیکن کون جانے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے والی تھیں، لیکن کون جانے کہ آگے کتنی آزمائشیں باقی تھیں، لیکن کون جانے۔ وہ 5ویں جماعت میں تھا جب اس کی کلاس میں ایک نیا بچہ آیا۔ اس نے ابھی اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ بچوں، یہ ہے شایان ذوالفقار، آپ سب کا نیا ہم جماعت۔ ٹیچر نے اس بچے کا تعارف کروایا۔ وہ بڑا ہی خوش مزاج قسم کا لڑکا تھا، وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ اس بات کا اندازہ شہریار کو کچھ ہی دن میں ہو گیا تھا۔ باقی بچے بڑھ چڑھ کر اسے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے، لیکن اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شہریار قیام پر ہی جمی ہوتی۔ نہ جانے کیوں، بس ایک عجیب سی کشش تھی اس میں جو شایان کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ بھی عام دنوں جیسا ایک دن تھا۔ شہریار اپنی وین کا انتظار کر رہا تھا جس نے اسے واپسی عقوبت خانے لے کر جانا تھا۔ وہ یتیم خانہ شہریار کے قیام کے لیے عقوبت خانہ ہی تھا۔ اتنے میں اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم آواز کی سمت اٹھنے لگے۔ وہ جگہ قدرے سنسان تھی۔ ہاں بھی کاکے، جب ہم نے کہا تھا آج سے اپنا ٹفن تو ہمیں دیا کرے گا تو تجھے بات ہماری سمجھ نہیں آئی تھی؟ 3 لڑکے شایان کو گھیرے کھڑے تھے۔ وہ 7ویں جماعت کے لڑکے تھے جن سے پورا اسکول تنگ تھا۔ سوری، شایان نے روتے ہوئے کہا۔ سوری کی کچھ لگتا ہے؟ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا۔ شہریار جو کب سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً شایان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھائی ہیرو، کیا اس کے حصے کی مار تو کھانا چاہے گا؟ دوسرا لڑکا بولا اور سب بے ہنگم کہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ شہریار کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے کھڑا رہا۔ تیسرا لڑکا شہریار کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے ایک مکہ اس لڑکے کے منہ پر مارا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 5ویں جماعت کا لڑکا ان 7ویں جماعت کے لڑکوں پر بھاری پڑنے لگا۔ شہریار نے مار مار کر ان تینوں کو بھگا دیا۔ منہ صاف کرو اپنا اور گھر جاؤ برگر بوائے، شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں برگر بوائے نہیں ہوں، شایان نے فوراً احتجاج کیا۔ کچھ دیر پہلے جو شہریار اسے اچھا لگ رہا تھا اب انتہائی برا لگنے لگا۔ اوکے ممی ڈیڈی بچے، شہریار نے اسے پھر زج کیا۔ شایان اپنے چہرے کی طرح کے زاویے بنانے لگا۔ وہ شہریار کو بہت کیوٹ لگا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ آخری بار کب مسکرایا تھا، لیکن آج شایان ذوالفقار کے بدولت شہریار قیام دل کھول کر ہنسا تھا۔ میرے دوست بنو گے؟ شایان نے پوچھا۔ میں دوست نہیں بناتا، شہریار کی آواز مدھم ہوگی، نہ جانے کیوں، لیکن شایان ذوالفقار دی برگر بوائے سے اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے بنا لو، یقین مانو مایوس نہیں ہوگے۔ شایان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے شہریار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یہاں سے آغاز ہوا ان کے بے لوث دوستی کا۔ محبت سمیٹ لیتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم، سنا ہے دوست اچھے ہوں تو کانٹے بھی نہیں چھپتے۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے آج ایک دوست ملا تھا، لیکن عقوبت خانے جانے کا سوچتے ہی اسے سرجری آئی۔ وہ مقررہ وقت پر وین میں نہیں سوار ہو سکا تھا، اسے دیر ہو گئی تھی، لیکن آج اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ وین یتیم خانے پہنچی وہ لوگ شہریار کو لے کر سیدھا زرغنہ کے پاس پہنچے۔ باس، آج یہ وین میں دیر سے سوار ہوا تھا۔ ایک گنڈا سرغنے کے پاس آیا اور شہریار کو دھکا دے کر بتانے لگا۔ شہریار سرغنے کے قدموں میں جا گرا۔ کیوں بھائی، کہاں تھا تو؟ سرغنے نے شہریار کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ کیوں بھائی، زبان نہیں ہے کیا منہ میں؟
اس نے پھر پوچھا، لیکن شہریار اب بھی خاموش رہا۔ آپ کے سرغنے کو غصہ آیا۔ اس نے چابک نکالا اور پیدر پہ اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مار مار کے تھک گیا، لیکن شہریار کی چپ نہ ٹوٹی۔ لے جاؤ اسے اور 2 دن کا کھانا بند کر دو اس کا، سرغنہ نے حکم دیا۔ 2 گنڈے شہریار کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ ٹونی جو اس کا دایاں بازو تھا اس سے مخاطب ہوا۔ باس، آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ تجسس ہوا۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے ٹونی، اس کی رگوں میں پاکستان کے ایک بہادر بیٹے کا خون دوڑتا ہے۔ میں اسے اتنی اذیت دوں گا کہ وہ راہ بھر سے راہزن بن جائے گا۔ لوگ اسے لوسیفر کے نام سے جانیں گے، ایک دنیا کانپے گی اس کے نام سے۔ ہا 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 ہا۔ اس کا مکروہ کہکا فضا میں گونجا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر پر حاوی ہے۔ انسان چاہ بھی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ کون جانے اس کی چال اسی پر الٹنے والی تھی، کون جانے کہ ظالم کی رسی کھینچے جانے والی تھی۔ لیکن کون جانے۔ ان کی دوستی دن بہ دن گہری ہوتی جا رہی تھی، پتہ بھی نہ چلا اور 2 سال گزر گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی و ملزوم تھے۔ شہریار کی دوستی کا شایان پر یہ اثر ہوا کہ اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، اب وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا تھا، اور شایان کی دوستی کا شہریار پر یہ اثر ہوا کہ اس کو اپنے دماغ میں پلتے منفی خیالات سے چھٹکارا ملنے لگا۔ اب وہ ہر چیز کو مثبت طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہریار، اگر برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں؟ شایان نے تمہید باندھی۔ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ شہریار نے ابرو اچکائی۔ شہریار، تم جب بھی اسکول آتے ہو تمہارے بازوؤں پر نیا زخم ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ شایان کچھ وقفے کے بعد بولا، جبکہ شہریار کو چپ لگ گئی۔ سردیوں میں تو اسکول کا یونیفارم مکمل بازوؤں والا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے زخم چھپ جاتے تھے، لیکن گرمیوں میں وہ کیا کرتا، کیونکہ ان کے اسکول یونیفارم کے آدھے بازو ہوتے تھے۔ وہ اپنے زخم کسی سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا، اسی وجہ سے شایان کی نظر اس کے زخموں پر پڑی تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں نے سوچا ہم دوست ہیں تو بس اسی لیے پوچھ لیا۔ شایان نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا اور وہ ہو بھی گیا۔ یہ چابک لگنے کی وجہ سے زخم بنے ہیں۔ میرا مالک مجھ سے بھتہ خوری کرواتا ہے، اور جب کوئی دکاندار بھتہ دینے سے انکار کرے وہ اس کی سزا مجھے دیتا ہے۔ اور پھر وہ علی سے یہ تک سب بتاتا چلا گیا۔ شایان کی آنکھیں یہ سن کر نم تھیں۔ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج شایان کو حقیقی معنوں میں اس حدیث کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ شہریار کی تکلیف سے اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور شہریار قیام ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی خبر پڑھ کر سنائی ہو۔ ہر موڑ پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، محسن تیری بستی کے لوگ اداکار بہت ہیں۔ کہتے ہیں وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن شہریار قیام کے لیے 23 مارچ کا دن ایسا تھا جو کبھی نہیں بدلتا تھا۔ اس کی اور شایان کی دوستی کو 5 سال ہونے کو آئے تھے۔ ہر سال اس دن اسے شایان ہی سنبھالتا تھا۔ شہری، تجھے باس نے بلایا ہے، ٹونی نے آ کر مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے شہریار سے کہا۔ شہریار نے قرب سے آنکھیں بند کی اور ٹونی کے پیچھے چل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ ہر سال اس دن یہی تو ہوتا تھا۔ آؤ برخوردار، تمہارا ہی انتظار تھا۔ سرغنہ نے بڑی بے تابی کا مظاہرہ کیا۔ شہریار اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آس پاس سرغنہ کے بے حس ماتحت کھڑے تھے، جو بڑی بے تابی سے اس 16 سال کے لڑکے کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ تمہیں پتہ ہے شہری، میں آج بہت خوش ہوں۔ آج کے دن ہمارا سب سے بڑا دشمن مرا تھا۔ پتہ ہے وہ کون تھا؟ سرغنہ نے شہریار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ تیرا باپ تھا۔ سرغنہ نے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ اس کے چیلوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ باس، آپ کو نہیں لگتا اسے بھی ہماری خوشی میں شریک ہونا چاہیے؟ ٹونی نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات پر ایک بار پھر ان سب کا کہکا گونجا۔ آج تو تیرے اسکول میں تقریب ہے نا، چل جا کر تیار ہو جا، تجھے تقریب میں بھی تو شامل ہونا ہے، سرغنہ نے اسے کہا۔ شہریار ابھی بھی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ابے جانا، ٹونی نے اسے دھکا دیا۔ شہریار اس وقت ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ جا کر تیار ہوا اور اسکول میں منعقد تقریب کے لیے چل دیا۔ سرغنہ نے ایک آدمی کو شہریار کے پیچھے بھیجا۔ وہ بھول گیا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو انسان کے سارے کسبل نکال دیتی ہے۔ ہر فرعون کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایک موسیٰ آتا ہے۔ ہر نمرود کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ ایک ابراہیم بھیجتا ہے۔ ہر یزید کو مٹانے کے لیے ایک حسین آتا ہے۔ جیسے ہی وہ کالج پہنچا، اس نے شایان کو اپنا منتظر پایا۔ اس کو دیکھتے ہی شایان اس کے قریب آیا اور زور سے گلے لگا۔
شہریار کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ شایان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ شہریار کو لے کر قدرے سنسان جگہ پر چلا آیا۔ شہری، شایان نے اسے پکارا۔ میں ٹھیک ہوں یار، پریشان مت ہو، شہریار نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، شایان نے سینے پر ہاتھ باندھتے کہا۔ اب تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ میں سچ میں ٹھیک ہوں؟ شہریار نے تیوری چڑھائی۔ ثبوت دو، شایان نے ابرو اچکائے۔ تم پہیلیاں بجھوانا بند کرو گے؟ اب شہریار زچ ہونے لگا تھا۔ میرے بھائی، میں بیچارہ صبح سے تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، میرا گلوکوز لیول خطرناک حد تک لو ہو گیا۔ اب تمہیں چاہیے نا کہ کولڈ ڈرنک، کرکرے، سموسے وغیرہ کھلا کے میرا گلوکوز لیول بحال کرواؤ۔ شایان نے کچھ اس معصومیت سے کہا۔ شہریار کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ بھکڑ آدمی، کسی دن کھا کھا کر مر جانا ہے تم نے۔ رکو، یہاں لے کر آتا ہوں کچھ، شہریار کہتا ہوا کھڑا ہوا۔ ایک اچھا دوست ہونا بھی بہت نعمت ہے جو انسان کو لمحوں میں صدیوں کی تھکن بھلا دے۔ شایان بینچ پر بیٹھا شہریار کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے اپنے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ آ گئی شہری، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولتا ہوا پیچھے مڑا تو ایک سیاہ فام شخص کو خود کو گھورتے پایا۔ وہ اس شخص کو پہچانتا تھا، وہ وہی تھا جو شہریار کے ساتھ آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر شایان کا رنگ پھک ہوا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچتا، اس نے شایان کے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے درخت کے پیچھے لے گیا۔ شایان کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ شہریار، جو کہ کرکرے اور کولڈ ڈرنک دے کر آیا تھا، اس نے اس شخص کو شایان کو زبردستی درخت کے پیچھے لے جاتے ہوئے دیکھا۔ شہریار کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنے ہاتھ میں موجود چیزیں اسے نیچے پھینکی اور زمین پر پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس درخت کی طرف چل دیا۔ شہریار دبے قدموں سے اس شخص کے پیچھے پہنچا اور پتھر 2-3 دفعہ اس کے سر پر مارا۔ وہ شخص حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ شہریار نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پچھلے گیٹ سے لے کر باہر لے گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرتے شایان کے گھر پہنچے۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ گھر میں صرف سائمہ ذوالفقار موجود تھیں۔ السلام علیکم اماں جان۔ شومئی قسمت کہ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی اور باقی سب کمروں میں تھے۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج بہت جلدی آ گئے، ورنہ یہ دن تو تم شہری کے ساتھ گزارتے ہو، انہوں نے عام انداز میں پوچھا۔ شایان شہریار کا ذکر ہی اتنا کرتا تھا کہ گھر والوں سے اس کا تعارف ہو گیا تھا۔ سب لوگ شہریار کو پسند کرتے تھے سوائے امائزہ کے۔ آخر اسے اپنا سب سے عزیز بھائی جو بانٹنا پڑا تھا۔ خیر، یہ صرف امائزہ کی سوچ تھی۔ ہر انسان دوسروں کی زندگی میں اپنا مقام خود بناتا ہے، اپنے اخلاق و کردار کی بدولت۔ وہ اس لیے پیاری اماں جان کیونکہ آپ کے لاڈلے شہری کو اپنے ساتھ لایا ہوں آج۔ شایان بہت مشکل سے خود کو سنبھالے کھڑا تھا، جبکہ شہریار ہونکوں کی طرح دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا۔ سائمہ بیگم، جن کی نظر ابھی شہریار پر پڑی تھی، انہوں نے بے ساختہ اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ یہ میرا شہری ہے شایان، تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی اتنی محبت پر شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہاں دیکھی تھی اس نے آج تک ماں کی محبت؟ جی اماں جان، میں ہی آپ کا شہری ہوں۔ اماں جان تو اس کے طرز تخاطب پر ہی نہال ہو گئی تھی۔ شایان کے علاوہ سب بس اسے اتنا ہی جانتے تھے کہ شہریار یتیم ہے، اس لیے انہیں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی انسیت تھی۔ اماں جان، میں شہریار کو اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، آپ کچھ کھانے کے لیے بھجوا دیں، شایان نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، میں بھی کچھ بھجواتی ہوں، اماں جان کہہ کر کچن کی طرف چلی گئیں، جبکہ شایان شہریار کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں شایان کے کمرے میں آئے تو ایک 8 سالہ بچی اوندھے منہ بستر پر لیٹی تھی۔ شایان نے گہری سانس لی۔ شہری، تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک امائزہ کو اٹھاتا ہوں، شہریار کو کہہ کر وہ امائزہ کی طرف بڑھا اور شہریار بیت الخلاء کی طرف بڑھ گیا۔ امائزہ گڑیا، اٹھو، شایان نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ 2-3 بار اٹھانے پر بھی جب وہ نہ اٹھی تو شایان نے اسے جھنڈوڑ ڈالا۔ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہ ہڑبڑا اٹھی۔ زلزلہ نہیں آیا، شایان ذوالفقار آیا ہے، شایان نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا بھائی، آپ بھی نا، میں نہیں بولتی، امائزہ نے منہ بنایا۔ میرے کمرے میں کیوں سو رہی ہو، اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئی؟ شایان نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کا کمرہ میرا فیورٹ ہے، امائزہ نے بتیسی دکھائی۔ اتنے میں شہریار بھی بیت الخلاء سے باہر آ گیا۔ یہ باگڑ بلّا کون ہے بھائی؟ اور امائزہ ذوالفقار نے پہلی ہی نظر میں شہریار خیام کو باگڑ بلے کا خطاب دیا تھا۔ شہریار نے تیوری چڑھائی جبکہ شایان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بری بات گڑیا، یہ میرا دوست شہری ہے، شایان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، تو یہ شہری ہے، امائزہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور بستر سے نیچے اتری۔ اب وہ شہریار کے گرد گرد گول گول چکر لگاتے ہوئے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ویسے یہ اتنے بھی کچھ خاص نہیں جتنی آپ ان کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں، امائزہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ مس پٹاخہ،
शहरयार जो कब से छटांग पर रही लड़की की बातें सुन रहा था उसके मुंह से फिसला। क्या 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 कहा? अमायजा ने बकायदा कमर पर हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरफ पूछा। जो तुमने सुना, शहरयार ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। अच्छा बस बस अमायजा बच्चे, आप जाकर देखो काशान और मरकान क्या कर रहे हैं। शायान ने अमायजा को कमरे से गायब करना चाहा, वरना उसे कोई उम्मीद नहीं था कि वह भी शहरयार पर चढ़ दौड़ती। जी भाई। अमायजा शहरयार को घूरते हुए कमरे से निकली। कोई कह नहीं सकता था कि वह महज 8 साल की बच्ची है। फपे कुटनी औरतों वाली तमाम खसूसियात थीं उसमें। पागल लड़की। शहरयार ने सर झटका। शायान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट का शाइबा तक ना था उसके चेहरे पर। अब क्या करना है शहरी? उस आदमी को भले ही सेल्फ डिफेंस में मारा था, लेकिन ये कोई छोटी बात तो नहीं है। शायान की संजीदा आवाज़ गूंजी। मेरा ख्याल है हमें घर के बड़ों को सब बता देना चाहिए, फिर इसके बाद जो वो फैसला करेंगे उस पर अमल करते हैं। शहरयार, जो कब से इसी पहलू पर सोच रहा था, उसने अपनी राय से शायान को आगाह किया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायान भी उसकी बात से मुत्तफिक था। और फिर उसी रात शायान और शहरयार जुल्फ़िकार, हैदर और मिसेस जुल्फ़िकार के सामने हाजिर थे। उन्हें सारी बात मनोमन बताकर शहरयार सर झुकाकर खड़ा हो गया, गोया अभी उसे सजाए मौत सुनाई जाएगी। मिसेस जुल्फ़िकार तो बस रोते हुए शायान का मुंह चूम रही थी। ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे कि अगर शहरयार वक्त पर ना आता तो न जाने उनके बेटे के साथ क्या होता। शहरयार बच्चे, आज से आप हमारे साथ रहोगे और इसे मेरा हुक्म समझो। कुछ दिन तक आप दोनों घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि वो लोग हर तरफ आपको ढूंढ रहे होंगे। मैं जल्द अज जल्द दूसरे शहर शिफ्ट होने का इंतज़ाम करता हूँ। मिस्टर जुल्फ़िकार कुछ वक्फे के बाद मजबूत लहजे में बोले। इसके बाद मिस्टर और मिसेस जुल्फ़िकार दोनों अपनी जगह से खड़े हुए। बारी बारी उन दोनों का माथा चूमकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। शायान की तो दिली मुराद भर आई थी। उसने फौरन शहरयार को गले लगाया। एक भोला भटका आंसू शहरयार की आंख से गिरकर बेमोल हुआ था, जिसे उसने फौरन साफ किया। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के होते हैं। बस हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं और अपने उधेड़पन में अच्छे लोगों को गवा बैठते हैं। लेकिन वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो उन मुखलिस और बेगर्ज लोगों को पहचान कर उनकी कदर करते हैं। और शहरयार ख़याम उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक था। रस होते हैं आंसुओं के सजदे, बुलंद जब आजमाइश की अज़ां होती है। बड़ा मुश्किल है ज़ब्त का वज़ू संभालना, बड़ी लंबी ये सब्र की नमाज होती है। मिस्टर जुल्फ़िकार अपने ख़ानदान समेत अपना आबाई शहर छोड़कर मुल्तान मुंतकिल हो गए थे। शहरयार दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा था कि उसकी वजह से उन अच्छे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। लेकिन खैर, अब क्या हो सकता था। मिस्टर जुल्फ़िकार ने उसे एक मोबाइल फ़ोन ले दिया था। मोबाइल मिलते ही उसने पहला काम ऑनलाइन जॉब ढूंढने का किया, जो खुशकिस्मती से उसे मिल गई। उसने शायान के साथ ही पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया। एफए के बाद शहरयार का इरादा फ़ौज में भर्ती होने का था, जबकि शायान एमबीए करना चाहता था। वो भी आम दिनों की तरह एक दिन था। शहरयार अपने और शायान के मुश्तरका कमरे में बैठा हुआ था। अचानक उसे थकावट होने लगी। उसने कुछ देर ब्रेक लेने का सोचा। वो खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सामने वाले घर से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ। वो जो कोई भी थी, बड़ी पुरकशिश थी। सर पर लिया हुआ हिजाब उसे बावकार बनाता था। शहरयार ने बेसाख्ता सर झटका। सिनफ़े नाजुक से वो वैसे भी दूर रहता था। बकौल शहरयार, लड़कों को बिगाड़ने और मगरूर बनाने में सबसे बड़ा हाथ लड़कियों का होता है, क्योंकि वो ज़रा सी अच्छी शक्ल देखकर मुतासिर हो जाती हैं। कुछ देर की ब्रेक के बाद शहरयार फिर से पढ़ने बैठ गया, जबकि वो लड़की अभी तक दूध वाले से बहस कर रही थी। अगले दिन वो दोनों कॉलेज के लिए रवाना हो गए। वो दोनों अभी बैठे ही थे कि कल वाली लड़की पर शहरयार की नज़र पड़ी। शहरयार को बहुत हैरत हुई, क्योंकि उसने पहले कभी उस लड़की को क्लास में नहीं देखा था। चौंका, वो लोग को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा थे, लिहाजा लड़के लड़कियां साथ ही पढ़ते थे। थोड़ी देर बाद उस्ताद मोहतरम क्लास में तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। प्रोफेसर दाऊद ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सबने एक साथ जवाब दिया। अनूशे मिर्ज़ा। प्रोफेसर ने नाम लिया तो वही लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई जिसके बारे में शहरयार सोच रहा था। ओह, तो मोहतरमा का नाम अनूशे है। खैर, मुझे क्या। शहरयार ने खुद कलामी करते हुए सर झटका। बच्चों, ये आपकी नई हम जमात है। उम्मीद है आप सबका वक्त अच्छा गुजरेगा। अनूशे, चौंका, आपने लेट एडमिशन लिया है, तो जो टॉपिक आपके रह गए हैं वो मिराल और शहरयार से समझ लीजिएगा। प्रोफेसर ने पहली बात क्लास से की थी और दूसरी बात अनूशे से की। इसके बाद पूरी क्लास पर एक नज़र डाली। किसी का कोई सवाल? प्रोफेसर दाऊद ने फिर पूछा, लेकिन किसी का कोई सवाल ना आया। तो प्रोफेसर भी व्हाइट बोर्ड की तरफ मुतवज्जे हो गए।
शहरयार और शयान इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे। प्रोफेसर दाऊद के हुक्म पर शहरयार मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बना रहा था, जबकि शयान उसकी हालत से हंस उठाते हुए कहके लगा रहा था। क्या यार, प्रोफेसर को भी सिर्फ मैं ही मिला था, वो किसी और को भी तो जिम्मेदारी लगा सकते थे। शहरयार झुंझुला गया था। सिर्फ मर्द ही औरतों के लिए नामहरम नहीं हुआ करते, औरतें भी मर्दों के लिए नामहरम हुआ करती हैं। अगर एक बाकिरदार औरत इस बात का ख्याल रखती है कि वो नामहरम मर्दों से दूर रहे, तो एक बाकिरदार मर्द भी इस बात का ख्याल रखता है कि वो नामहरम औरतों से दूर रहे। इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मर्द को नामहरम औरत की तरफ निगाह उठाने से भी मना किया है, क्योंकि एक औरत मर्द की ज़हनियत को कभी नहीं परख सकती, और शहरयार क़याम इन बातों से आगाह था। बेटा जी, जो तुम्हारे साथ हुआ है बड़ा ही अच्छा हुआ है। तुम्हें ही शौक था प्रोफेसर की गुड बुक्स में आने रहने का। अपनी बात कहकर शयान ने जोरदार कहका लगाया, जबकि शहरयार ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। एक्सक्यूज़ मी, आप में से शहरयार कौन है? इससे पहले शहरयार जवाबी कार्रवाई करता, उसकी समाज से एक बेहद मीठी निस्वानी आवाज़ टकराई। जी, मैं ही हूँ शहरयार। शहरयार ने सपाट अंदाज में कहा। मैं अनुशे मिर्ज़ा। अनुशे को समझ नहीं आई वो कि बात का आगाज़ कैसे करे। जी, मैं जानता हूँ। लहजा हनूस सर था। मुझे कुछ टॉपिक के नोट्स चाहिए आपसे, अगर आप। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, शहरयार ने अपने सारे नोट्स उसके हवाले कर दिए। और कुछ? उसने अब्रू अचकाई। शुक्रिया, मैं आपको ये 1 हफ्ते तक वापस कर दूंगी। अनुशे ने तशक्कुर अमेज़ नज़रों से उसकी जानिब देखा। शहरयार ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया। अनुशे वापस जाने के लिए मुड़ी कि कुछ याद आने पर वापस पलटी। एक और बात मिस्टर शहरयार, मुझे गलत लड़की मत समझिएगा। मैं कभी आपके पास नोट्स मांगने ना आती, अगर मिराल मेरी मदद करने के लिए राज़ी होती। वो तो बात सुनने को भी तैयार नहीं है। खैर, अल्लाह हाफिज़। अपनी बात मुकम्मल करके वो ये जा वो जा, जबकि शयान और शहरयार मुंह खोले एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। न जाने उस लड़की को उनकी सोच तक रसाई कैसे हासिल हो गई थी। 3 महीने होने को आए थे। अनुशा अपना ज़्यादातर सिलेबस कवर कर चुकी थी। इस बीच वो शहरयार से कोई ना कोई टॉपिक समझती रहती थी। उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इस बीच शहरयार को पता चला कि 2 दिन बाद अनुशा की सालगिरह है। उसने अनुशा के लिए तोहफा लेने का सोचा। अब मसला ये था कि उसने कभी लड़कियों की शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए वो शयान को भी अपने साथ मॉल में घसीट लाया। आखिर उसकी भी एक बहन थी, लड़कियों की शॉपिंग का कुछ तजुर्बा तो होगा ही उसे। क्या यार शरी, इकलौता दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ तो इज्जत कर लिया करो मेरी। शयान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने क्या किया? शहरयार ने अनजान बनते हुए पूछा। हाँ हाँ, मॉल में तो मैं आपको घसीट कर लाया हूँ। आप कुछ करते ही कहाँ हैं इज्जत माब मोहतरम शहरयार क़याम साहब। शयान ने तंज किया, जिस पर शहरयार ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा बताओ, मैं उसे क्या तोहफा दूँ? शहरयार ने बात बदली। दोस्त वो तुम्हारी है, मुझे कैसे पता होगा क्या तोहफा देना चाहिए? शयान ने कंधे अचकाए। मार मत खा लेना, मुझे सीधी तरह मशवरा दोगी। शहरयार ने तंबीह की। उल्टी तरह भी मशवरा देते हैं कोई? शयान ने बात हवा में उड़ाई। शायान! शहरयार ने उसके नाम पर जोर दिया। अब वो जिद हो रहा था। अच्छा अच्छा, अब मैं संजीदा हूँ। तुम ऐसा करो, इसे कोई घड़ी, ब्रेसलेट या चॉकलेट्स तोहफे में दे दो। शायान ने मशवरा दिया। नहीं यार, ये तो सब देते हैं। शहरयार को शायान का मशवरा पसंद नहीं आया। तो फिर क्या दोगे? शायान ने गहरा सांस लिया। अनुशा जैसी लड़की जो हर वक्त किताबों में मगन रहती है, उसके लिए एक किताब से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? शहरयार ने अपना ख्याल जाहिर किया। बात तो ठीक है। शायान भी उससे मुत्तफिक था। इसके बाद वो दोनों बुक शॉप की तरफ बढ़ गए। शहरयार ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किताब ली। एक अच्छी किताब इंसान का किरदार संवार देती है, और एक बुरी किताब इंसान को तबाह कर सकती है। जो कुछ पढ़ते या सुनते हैं उसका असर हमारी रूह पर होता है, क्योंकि आंखें और कान वो ज़राए हैं जिनसे रूह ग़िज़ा हासिल करती है। आखिरकार अनुशा का जन्मदिन आ गया। शहरयार और शयान तैयार हो रहे थे, जबकि काशान, अरमगान और अमायजा बगैर दस्तक दिए कमरे में आ गए। तुम लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि दस्तक देकर कमरे में आते हैं? शायान ने उन तीनों को घूरा, लेकिन उन ढीठों को असर कहाँ था। आज तो आप दोनों बिजलियां गिरा रहे हैं भाई। सच बताएं, सालगिरह पर जा रहे हैं लड़की पटाने? अरमगान ने चुटकुला छोड़ा। उन दोनों ने दोनों को एक साथ घूरा, जिस पर वो बदीसी की नुमाइश करने लगे। वैसे अरमगान गलत भी नहीं कह रहा, सच बता दे भाई, बहन भाइयों से कैसी पर्दादारी? काशान ने सोफे पर बैठ कर फैलते हुए कहा। शायान भाई ऐसे नहीं है, अलबत्ता
ज़कूटा जिन का कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले कि शायान कुछ कहता, माइजा उसके हक में बोल पड़ी, जबकि खुद को ज़कूटा जिन कहलाए जाने पर शहरयार ने माइजा को घूर कर देखा, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे एक मैं ही तो बदमाश हूँ, आपके भाई तो दूध के धुले हैं। शहरयार ने जवाबी कार्रवाई की। देर आए दुरुस्त आए। माइजा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। तुम्हें तो मैं वैसे एक बात बताएं, इतना बंद थन कर किससे आंख मटक्का करने जा रहे हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, माइजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई हो तो क्या हम चलें। बल आखिर शायान को इन दोनों को टोकना पड़ा, वरना उन दोनों से कोई बईद नहीं थी कि तीसरी जंग अजीम शुरू कर देते। चलो। शहरयार ने अपना कोट दुरुस्त किया और माइजा को घूरते हुए कमरे से निकल गया। सालगिरह का फंक्शन एक बहुत बड़े होटल में था। हर तरफ रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। शहरयार और शायान एक साथ अनुषे की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। उन दोनों ने एक साथ सलाम किया। पीच रंग की मैक्सी में बाल खुले छोड़े और दुपट्टा एक कंधे पर लटकाए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वालेकुम अस्सलाम, उसने खैर मकदमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हम दोनों की तरफ से सालगिरह की बहुत मुबारक हो अनुषे, शायान ने मुस्कुरा कर कहा। बहुत शुक्रिया। वो जवाब शायान को दे रही थी, लेकिन नज़रें उसकी शहरयार पर थीं। इतने में अनुषे की अम्मी भी उनकी तरफ आ गई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। उन दोनों ने एक साथ सलाम का जवाब दिया। मम्मा, ये शहरयार है और ये शायान, मैंने आपको बताया था ना इनका। अनुषे ने बारी बारी दोनों का तारुफ कर पाया। ओह, तो आप शहरयार हो। अनुषे बहुत जिक्र करती है आपका। उनकी बात पर शहरयार झींप गया, जबकि शायान ने उसे मानी खेज नज़रों से देखा, जिसे उसने सिरे से ही नज़रअंदाज किया। इससे पहले मिसेस मिर्ज़ा उसका इंटरव्यू शुरू करती, मिस्टर मिर्ज़ा वहाँ आ गए। अनुषे बेटा, केक काट लो, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने आते ही अनुषे को मुखातिब किया। जी बाबा। अनुषे ने रजामंदी देते हुए केक की जानिब कदम बढ़ाया। सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा होने लगे। अचानक अनुषे को ज़ोरदार चक्कर आया और वो ज़मीन पर गिर गई। देखते ही देखते उसके हाथ पांव मुड़ने लगे और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलने लगी। लगता है इस पर काला जादू हो गया। नहीं, ये तो फालिज का अटैक लगता है। कहीं से मिर्गी का दौड़ा तो नहीं पड़ गया। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तरह तरह के लोग भांत भांत की आवाज़ें, लेकिन अनुषे मिर्ज़ा का वजूद साकित हो गया था। उसकी जन्म का दिन उसकी मौत का दिन बन गया था। मिर्ज़ा हाउस के लोगों की खुशी मातम में बदल गई थी। ये सब इतने अचानक हुआ कि किसी को कुछ खबर ना हुई। जिंदगी इतनी ही बेसबात है, पता ही नहीं चलता कब सांसों की डोर टूट जाए और इंसान के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएं। अनुषे की अचानक मौत ने उस होटल में मौजूद हर शख्स के दिलो दिमाग पर ना पिटने वाले नकूच छोड़ दिए थे। उसको भुलाना मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन किसी के चले जाने से हमारी ज़िंदगी थोड़े ना रुक जाती है। मौत से किसको दस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है।